تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتا چلا رفتن کرنا بہتر ہے تو آپ کرو، لیکن دوسرے پہ تھوپو مت. جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ دیکھتے ہیں ارے یہ سوٹ بوٹ ہے، پھر ٹائی ہے، ٹھگنے کے اوپر دھوکا لگتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑی ہیں اسٹیج پہ پاکستان میں. آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کے یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں. حافظ احمد نے مولانا طارق جمیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب انٹرویو کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے برس پڑے اور کیسے غصے میں اور جلال میں وہ اپنے دکھ کا، درد کا اظہار کر رہے ہیں اور کون کون سی باتوں کی ان کو پاکستان میں آ کر ذلت اٹھانی پڑی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی میرے خیال کے مطابق پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بالکل چند روز کے اندر ہی واپس چلے جائیں باہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. سامعین محترم، دوستو عزیز، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی مولانا طارق جمیل سے ملاقات ہوئی ہے. شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں اور ایسی باتیں یقین کریں کہ آپ کو سن کر دکھ بھی ہوگا، شاید آپ پریشان بھی ہوں گے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. حالانکہ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ اختلافات ہیں. ہماری مخالفت کسی عالم دین کے ساتھ، کسی مذہبی انسان کے ساتھ نہیں، لیکن اختلافات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق ہمیں بھی اختلافات ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا یار بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. وہ ویڈیو کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کون کون سے دکھ درد بیان کیے ہیں اور پاکستان سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے. سامعین محترم، وہ ویڈیو کلپ پیش کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی چند ایک جملے مطلب کہ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان میں آنے لگے تو پاکستانی علماء اور عام مذہبی لوگوں کو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک میں عیب نظر آنے لگے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی سال انڈیا میں دین کی تبلیغ کی ہے، لیکچر دیے ہیں، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، لیکن انڈیا میں کسی بھی عالم دین نے اتنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت نہیں کی جتنی مخالفت ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان میں کی گئی اور ہو رہی ہے. حتیٰ کہ اب تو کچھ صحافیوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے التجائیں کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان چھوڑ جائیں، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سامعین محترم، ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان میں آئے تو ڈاکٹر ذاکر نائک پر پہلے فتوے یہ لگے کہ یہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یہ یزید کا ساتھی ہے، یہ یزید کا حامی ہے، یہ یزیدی ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ باغی کہتا ہے. ایسی غلط باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ کی بھی تھیں، لیکن بہرکیف وہ جو بھی ہے ایک سائڈ پہ رکھیں اس بات کو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق پھر جو مناظرے کے متعلق بھی گفتگو ہو رہی ہے، اب بھی لوگ مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ایک مہمان ہیں اور حکومتی سطح پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. وہ بھی انہوں نے کئی لیکچروں میں اب کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، انڈیا میں لوگ میری جتنی عزت کرتے تھے اتنی عزت مجھے پاکستان میں نہیں ملی. تو آخری بات میں کر کے وہ کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک سوشل میڈیا پہ انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ دور ایسا جا رہا ہے کہ جتنی بھی نیوز اینکر لڑکیاں ہیں ان کی طرف دیکھ کر بندے کا دل پھسل جاتا ہے، دل میں الٹ غلط ملت خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے، میک اپ کیا ہوتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اقرار الحسن نے بڑی عجیب و غریب ویڈیو بنا ڈالی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک پر ایک قسم کا بہتان اور الزام لگایا گیا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی سطح پر یہ بات بالکل شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ام مکتوم نابینا صحابی آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا کہ ایک نابینا صحابی آیا ہے تو دروازہ کھول دیا گیا. تو صحابہ کرام کے مطلب کہ آنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں بڑا اچھے طریقے سے پردے کا اہتمام کرتی تھیں، لیکن وہ نابینا صحابی ضعیف صحابی تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے کوئی پردے کا اہتمام نہیں کیا. پردے سے مراد یہ ہے کہ
साइड पे कमरे में नहीं बैठी होंगी, पर्दे के पीछे नहीं बैठी होंगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाद में फरमाया, जब उम्मे मक्तूम सहाबी चले गए तो हजूर ने फरमाया तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? तो अज़वाज मुतहरात ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, वो तो नबीना है, उसे कौन सा कोई नजर आता है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो नबीना है, उसे तो नजर नहीं आता, तुम तो नबीनी नहीं, तुम्हें तो नजर आता है, तुमने उसकी तरफ क्यों देखा? मतलब कि मर्द की तरफ देखने पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पाबंदी लगाई है और हया का तकद्दस जो है मलहूज़े खातर रखा है। तो सामीन मोहतरम, एंकरज ऐसी लड़कियां हैं कि जो मतलब कि खुले बाल छोड़े हुए हैं, कोई पर्दे का एहतमाम नहीं, मेकअप किया हुआ है। अक्सर एंकरज ऐसी हैं, शायद हजारों में से कोई एक आध ऐसी एंकर हो कि जो पर्दे का सही एहतमाम करती हो, वरना हमें तो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी एंकर लड़की नजर नहीं आती। तो ये भी डॉक्टर जाकिर नायक की बात ठीक थी, लेकिन इकरार अल हसन ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर डॉक्टर जाकिर नायक पर बोहतान बांध दिया है। तो डॉक्टर जाकिर नायक का ये वीडियो क्लिप समाअत फरमाएं कि हाफिज अहमद ने मौलाना तारक जमील के साथ बैठे हुए डॉक्टर जाकिर नायक का जब इंटरव्यू किया तो डॉक्टर जाकिर नायक कैसे बरस पड़े और कैसे गुस्से में और जलाल में वो अपने दुख का, दर्द का इजहार कर रहे हैं और कौन कौन सी बातों की उनको पाकिस्तान में आकर जिल्लत उठानी पड़ी है। डॉक्टर जाकिर नायक भी मेरे ख्याल के मुताबिक पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुझे नहीं आना चाहिए था, और हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर नायक बिल्कुल चंद रोज के अंदर ही वापस चले जाएं। बाहर का ये वीडियो क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इंडिया अगर आपके सारे मामला खत्म करके वापस चलाए तो आप जाएंगे वापस? आपका क्या इरादा है, या हिजरत में ही रहेंगे? नहीं, इंडिया अगर मौका दिया दावत देने का तो वो तो मैदान जंग है, हाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो दावती मैदान में मेरा काम और फैला मलेशिया में रहने से, वो तो कंटिन्यू करूंगा। इंडिया जाके दावत दूंगा, फिर आऊंगा हर साल में एक बार, दो बार, तीन बार, तो मिस तो करते हो। इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान से मुखातब हो सकते हैं लोग, और देखिए तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते हैं मुसलमान से और मुझसे भी। वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपनी खुर्सी के लिए नफरत फैलाते हैं। आपका ये माशाल्लाह जो है, आप पेंट कोट और टाई के साथ दीन की खिदमत करें, इसका क्या राज है? तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी। चारों अहम माह में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अम्मा को फॉलो करें तो गलत नहीं, आप कर सकते। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफतन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। ये जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका में देखते हैं, अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर धोखा लगता है। और डॉक्टर साहब, हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ी है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान किए, यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ी है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान किए, यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हैं किसी स्टेज में। तो भाई मेरा इसका ये मतलब है, इसका ये तो पूरी कौम की तरफ से हम माजरत खाएं। ज्यादा लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। बहुत खुश है। बिल्कुल, देखो वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने कहा कि नबियों के भी दुश्मन बने, इंसान भी, जिन्नात भी। तो ये जो भी खैर का काम करता है बेलौस होकर, उसको मुखालफत देखनी पड़ती। ये एक फितरी चीज है। मैंने एक दफा अपने कजन से कहा कि यार सारी दुनिया मेरी बात सुनती है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं सुनते, उल्टा मुखालफत करते हैं। वो कहने लगा यही बात आपके हक होने की अलामत है। मैंने कहा कैसे? कहा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार कहाँ उनकी सुनते थे? मदीने वालों ने सुनी, रिश्तेदारों ने तो सुनी ही कोई नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी बात से। तो जो भी खैर को लेके निकलेगा, शैतान उसके लिए रुकावटें डालेगा। डॉक्टर साहब, इंडिया अगर आपके सारे मामला खत्म करके वापस चलाए तो आप जाएंगे वापस? आपका क्या इरादा है, या हिजरत में ही रहेंगे? नहीं, इंडिया अगर मौका दिया दावत देने का तो वो तो मैदान जंग है, हाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो दावती मैदान में मेरा काम और फैला मलेशिया में रहने से, वो तो कंटिन्यू करूंगा। इंडिया जाके दावत दूंगा, फिर आऊंगा हर साल में एक बार, दो बार, तीन बार, तो मिस तो करते हो।
इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान से मुखातब हो सकते हैं लोग। और देखिए तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते हैं मुसलमान से और मुझसे भी। वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपनी कुर्सी के लिए नफरत फैलाते हैं। नहीं तो आम हिंदू, मुझे लगता है आम हिंदू, आम मुसलमान काफी उनमें भाईचारा है। डॉक्टर साहब ये कपड़ों का थोड़ा बता देंगे, माजरत फिर एक सवाल, आपका ये माशाल्लाह जो है आप पैंट कोट और टाई के साथ दीन की खिदमत करें, इसका क्या राज है? आप मतलब आमतौर पे लोग कोई भी आप काम करते हैं तो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हमारे शरीयत में अच्छी कैटेगरीज है लिबास पहनने की। एक एक्सटेंट है जो मर्द के लिए नेवल टू दनी है, दूसरा है कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए, तीसरा कपड़े पतले नहीं होना चाहिए, आप देख सकते, चौथा है भड़के लिए नहीं होना चाहिए, पांचवा है कि दूसरी जीन्स की नहीं होना चाहिए, और छठा है दूसरी मजहब का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी है, तो गलत फहमी। तो आप किधर भी बाइबल पुराना सलीब का लिखा ही नहीं। आप अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पढ़ेंगे तो बोलते थे ठंडी में कपड़े को टाइट रखने के लिए वो टाई का नॉट बांधते थे। तो इसमें कोई दलील नहीं है, लेकिन उनकी गलत फहमी तो है। जहां तक कि मेरा सवाल यह, मैं नॉर्मली कोट और सूट और पैंट पहनना पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो चीज आपको पसंद नहीं आप कर रहे अल्लाह के लिए, ताकि जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका में देखते हैं अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर जोकर लगता है, और फिर वो कोट कर रहा है, बाइबल कोट कर रहा है, हिंदू स्क्रिप्चर, तो इससे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब भी मैं लेक्चर देता हूँ उस टाइम में सूट पैंट पहनता हूँ। आमतौर पे आप घर पे आएंगे तो आप कितने देखेंगे तो मैं कुर्ते पजामे जैसे, तो आप अगर आप देखेंगे जब कोई भी मिलता है, ये मिलता मिलने थोड़े कुर्ते पजामे। खाली अगर बाहर जब तकरीर करने जाता हूँ और लोग देखते हैं तो भी सिंबल बन गया हो। तो जो चीज़ पसंद नहीं भी आप करते अल्लाह के लिए तो उसमें कबूलियत होती है। और ये गलत फहमी है कि हराम है, लेकिन अगर जो चीज़ हराम है उसको दावत मैदान करना गलत है। हराम का आप कोई भी गलत चीज़ का इख्तियार नहीं कर सकते, आप दावत करने के लिए भी, ये अलाउड नहीं इस्लाम में। मौलाना थोड़ा आप भी इसी पे अगर बात कर दें तो हमारे मुल्क में ये जो वेटिकन सिटी गया था तो मैंने उसका विजिट किया कि वो जो गिरजा है वहाँ भी, तो जितने पादरी थे किसी ने भी कोट पैंट टाई नहीं पहना हुआ था। सब ने ये जैसे हमारे बेटे ने लंबा चौहा पहना हुआ है, ये चौहा था तो, और ये भी नहीं थे। अच्छा, कॉलर तो दूर की बात, ये भी नहीं थे, वो जो बगैर उसके होता है जी वो, और गले में स्लीव, किसी ने चांदी की लटकाई हुई, किसी ने लोहे की लटकाई हुई। तो ये तासुर के भाई ये काफरों का लिबास है, ये सही नहीं है। तो आप सामने बताएं भाई ये चीजें हैं, ये ना हो, बस ठीक। डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में पब्लिक सेशन रख देते हैं, यहाँ पे तो लोग आपसे ऐसे सवाल भी करते होंगे और करेंगे कि जिसमें सिर्फ दूसरे फिरके को नीच दिखाना हो, तो ऐसी सूरत में आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? तो ऐसे वक्त में हमें हिकमत से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इन लोग जानबूझ के सवाल पूछते हैं, ना कि उन्हें जवाब नहीं पता। बिल्कुल, जवाब पता है फंसाने के लिए, और फिर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, उन्हें मजा आता है इख्तिलाफ करने के लिए, जानबूझ के पूछेंगे। अगर पता है कि जाकिर भाई ऐसा रफतन करते हो तो रफतन करना चाहिए, आप समझे ना। तो इसका हल ये है कि मैं कह रहा था कि एक चीज होता है फर्ज और एक चीज होता है अफजल। तो और जो इख्तिलाफ ज्यादा है वो अफजलियत पे है, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और चारों अइम्मा में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अइम्मा को फॉलो करें तो गलत नहीं, आप कर सकते। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफतन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। किसी में कहता हूँ कि मैं ही सही नहीं, मैं भी सही हूँ। तो ये अगर आप लेके जाएंगे और देखिए जाओ तो फराइज पे इख्तिलाफ नहीं है, बहुत कम इख्तिलाफ जो है मुस्तहब पे है, सुन्नत पे है, आप समझे ना। तो हमें किस तरीके से अगर आपके पास आप समझे, अभी आपने कहा है हाँ जी, हाँ नबी जान आप बोल जी हाँ, जी हाँ। तो इसके अंदर
अगर हिकमत से जवाब देंगे। बस मौलाना लास्ट पे वो शेर जो आपने डेडिकेट किया अगर आपको याद हो, इनकी आमद पे जो आपने शेर कहा है वो अगर आप सुना दें तो प्लीज। मज़त दुहूर फमा अतैन बिमिस्लिही लम्मा अताफ अजज़ अन नुज़राइही, कि मुद्दतें गुजरी, कोई इस जैसा न आया, और जब वो आया तो ज़माना उस जैसा दूसरा लाने में नाकाम रहा। मेहदी खलीफा अब्बासी वो जा रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने पूछा कि किस कबीले से हो? तो कहा मैं बनु तय, हातिम ताई। तो कहने लगे लिमा आजिज़त निसा अन यलिदना मिस्ल हातिम, तुम्हारे कबीले की औरतें क्यों आजिज़ हो गई कि एक और हातिम ताई पैदा कर देती? तो वो कहने लगी कमा आजिज़ बनु हाशिम अन यकून फीहिम मिस्लुका या अमीरुल मोमिनीन, जैसे बनु हाशिम आजिज़ हो गए कि उनमें तेरे जैसा कोई हो। तो वो खुशी से ऐसे झूमने लग गया उसकी बात सुन के। तो ये दोनों बातें डॉक्टर साहब को फिक्र। डॉक्टर जाकिर नायक साहब इस चीज़ का अफसोस कर रहे हैं कि मैं इंडिया में इतने लोगों को मुसलमान करता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मुझे मुसलमान कर रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग किसी को भी माफ़ नहीं करते, किसी को भी नहीं बख्शते। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब की कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं मानता हूँ। मुझे डॉक्टर जाकिर नायक से कुछ इख्तलाफात भी हैं, लेकिन मुखालफत नहीं है। मुखालफत और चीज़ होती है, इख्तलाफ और चीज़ होता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नायक हमारे मुल्क में आए हुए हम सब लोगों के मेहमान हैं, तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब को इज़्ज़त के साथ उनका मतलब कि इस्तकबाल करना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत और प्यार का इजहार करना चाहिए। देवबंदी लोग तो बड़े खुश हैं, वो तो इजहार कर रहे हैं। मुफ्ती तारक मसूद जो है वो भी डॉक्टर जाकिर नायक को बड़ी स्पेशल कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत मुशक्क़त तगोदो के साथ वो बार बार मिल रहा है डॉक्टर जाकिर नायक को, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और मेरे व्यूज़ जो हैं वो मेरे चैनलों पे ज़्यादा आ जाएं डॉक्टर जाकिर नायक की वजह से। मौलाना तारक जमील साहब जो हैं उन्होंने भी डॉक्टर जाकिर नायक को दावत दी है। देवबंदी वाबी अहले हदीस तो बड़े खुश हैं डॉक्टर जाकिर नायक पर, लेकिन अब डॉक्टर जाकिर नायक पर कुछ उलमा बरम होने के साथ साथ कुछ न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो भी डॉक्टर जाकिर नायक पर अब नाराज़ हो चुके हैं और वो भी तरह तरह की बातें डॉक्टर जाकिर नायक के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर नायक भी इन वजूहात की बिना पर परेशान हैं और अफसुर्दा दिल हैं। हो सकता है कि चंद दिनों में डॉक्टर जाकिर नायक साहब वापस चले जाएं पाकिस्तान से बाहर। के सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।